Hello everyone, I am Dr. Lalit Kumar Gupta, working in Krishna Engineering College, Ghaziabad, Applied Science Department. I welcome you in my video lecture series Relativity. Today we are going to discuss a very important and interesting experiment which is called Michelson-Morley experiment. Actually this whole chapter Relativity is based on this experiment Michelson-Morley, which is based on the imagination hypothetical case. Actually the objective of this experiment to detect the relative motion between earth and ether. Now the word ether is no any type of chemical name. Ether is just like a medium, and everybody know that the material medium is the necessity for propagation of wave. So it was considered that by the Michelson-Morley कि light can also propagate through this ether, as sound wave can propagate through air. So air is just like material medium, so ether is also just like a air medium. It was considered. So this ether can affect all the space and penetrate all the material medium. It was considered that this particular ether is rigid, highly perfectly elastic, resistiveless, transparent, and all the identical property have in ether. So the main objective of this experiment to confirm the presence of absolute frame of reference ether. Now we are going to discuss this experiment setup. In this particular setup we have two mirror M1 and M2. These two mirrors are situated perpendicular to each other like this from the point P. Okay, P is the half silvered glass mirror. This one is a half silvered glass mirror, which is also called the beam splitter. The work for this glass plate is to split the beam in two sides. This is the beam splitter. The distance from PM1 is equal to PM2 is equal to L. It means that the distance from P to M1 and P to M2 will be equal. Okay. Now start the process of this experiment. Suppose this monochromatic light move toward the mirror half glass plate, half silver glass plate P. When the monochromatic light strike on the half silver glass mirror, what happened? This beam splitter split the beam with two sides. The sum of the light moved toward the mirror M1, which is called rays number 1, and sum of the light moved towards the mirror M2, which is called the rays number 2. And now we have two condition. Either the two frame of reference, the first frame is ether and the second frame is earth. So both frame are at the stationary state. When both frame are stationary state, the time taken by the rays number 1 strike and reflect back, and the time taken by the rays strike M2 and reflect back, and both the rays when recombined at point P, the time taken will be equal by rays number 1 and 2. But the question is now, when the earth is moving with v velocity, जब अर्थ मूव कर रहा हो v velocity, क्या is it possible the time taken by the rays number 1 and rays number 2 will be equal or not? So the answer is the time taken by both the rays are not equal. क्यों इक्वल नहीं होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है. So we will try to find out the time difference between the reflected rays and transmitted rays. Okay, so now start the first time calculation for reflected rays number 1. तो हम इसको ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं. यहाँ से जो ट्राइंगल हाफ किया था PBD के लिए हमको सॉल्व करना है. तो पैथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PD का होल स्क्वायर प्लस DB का होल स्क्वायर. Okay, now calculate the value of PB, PD and DB.
तो आपको यहाँ से सिंपल दिखाई दे रहा है, जब लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेगी और ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ तक जाएगी तो द लाइट की वेलोसिटी कितनी है c, एंड एट एनी इंस्टेंट टाइम t अप्रोच एट पॉइंट p द वैल्यू इज ct, सिंपल। एंड व्हेन द लाइट वेलोसिटी v वेलोसिटी से t टाइम पे यहाँ तक पहुँचती है इस पॉइंट d तक, ये आपको ये d दिखाई दे रहा है, ये d है, यहाँ तक अप्रोच करती है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी pd की vt, ये आपको दिखाई दे रहा है vt लिखा हुआ, और ये डिस्टेंस क्योंकि दोनों इक्वल है तो l लिख देंगे। सो ये वैल्यू विल बी pv इज इक्वल टू ct का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा vt का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। टू सॉल्व द इक्वेशन c स्क्वायर t स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, ट्रांसफर द वैल्यू v स्क्वायर t स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड, तो v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, so t square is equal to l square upon c square minus v square. So both side squaring अंडर रूट ले लीजिए आप इसका, तो t is equal to हो जाएगा l upon अंडर रूट c square minus v square। तो यहाँ से फिर कॉमन निकाल लीजिए c आप, तो t is equal to l upon c, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। ओके, अब इसको ऊपर ले जाइए पावर हाफ को, t इज इक्वल टू एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब ये टू द पावर हाफ हुआ, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने पे क्या होगा, वी जस्ट टेक द हायर ऑर्डर वैल्यू, t इज इक्वल टू एल अपॉन सी 1 प्लस माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। सो दिस इज द टाइम कैलकुलेट फॉर हाफ पोर्सन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हाफ पोर्सन के लिए हम कैलकुलेट किए हैं। नाउ वी कैलकुलेट द होल पाथ यहाँ तक के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे इफ t1 is the total time taken by whole path। होल पाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये PBC के लिए निकालेंगे तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हाफ t था तो ये भी t होगा, दोनों हो जाएंगे, जब जोड़ेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा तो 2t। सो t1 इज इक्वल टू हो गया 2t की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। सो दिस इज द टाइम taken by the reflected light. Similarly we can also calculate the time taken by the transmitted rays. So we will discuss in later on video on time taken by the transmitted rays. We will come back after some time, we will discuss the time t2. Okay, thank you. Okay, welcome back to find out the time t2 for the transmitted light. So how to calculate the time t2? So time t2 calculate with the help of transmitted light। जो लाइट इस P पॉइंट से M2 तक गई और M2 से वापस P पर आई, तो आने और जाने में कितना समय लगा ट्रू एंड फ्रो में। सो इफ t2 इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बैक एंड फोर्थ, तो टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं बैक एंड फोर्थ में कितना लगेगा t2। सो t2 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है l अपॉन c माइनस v। याद रखिए जब वेलोसिटी इसी डायरेक्शन पे हो और अर्थ भी, जब दो चीज़ सेम डायरेक्शन पे जा रही हो तो वेलोसिटी विल बी डिडक्टेड, तो c माइनस v प्लस लेंथ सेम रहेगा। अब लाइट इधर जाएगी, लाइट जो इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है और अर्थ इस डायरेक्शन पे, तो c हो जाएगा c प्लस v, तो यहाँ पर जाएगा c प्लस v। ओके, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा c प्लस v इंटू एल प्लस एल c माइनस v अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो कैलकुलेट द वैल्यू,
एल सी प्लस एल वी प्लस एल सी माइनस एल वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. सो कैंसिल आउट द वैल्यू. सो T2 इज इक्वल टू वैल्यू हो गई एल सी एंड एल सी 2LC अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ओके, यहाँ से आप चाहें तो सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2LC अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सी से सी कैंसिल आउट हुआ तो 2L अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको आप चेंज करके और ठीक कर सकते हैं. 2L अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर -1. ये ऊपर ले गए. अब अगेन यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन विल बी T2. तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 2L अपॉन सी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो दिस वन इज द T2 एंड दिस वन इज द T1. सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में डेल्टा टी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. डेल्टा टी इज इक्वल टू, हम इसमें से निकालेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करेंगे तो वैल्यू विल बी LV स्क्वायर अपॉन सी क्यूब होगा दोनों के बीच में जब हम कैलकुलेट करेंगे. अब टाइम के बीच में डिफरेंस निकल गया तो हमको फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी. सो वैल्यू विल भी हो जाएगा LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा. लेमडा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वेव लेंथ हमको लेके चलना है. तो ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई. बट द क्वेश्चन अराइजेज दैट कि इज इट पॉसिबल और नॉट, डिटेक्ट हुआ कि नहीं, अभी ये पता नहीं चला. तो फिर क्या हुआ कि माइकलसन मोर्ले ने इस एक्सपेरिमेंट को, पूरे एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. अब 90 डिग्री से रोटेट करने से क्या होगा, उन्होंने देखा कि रिजल्ट चेंज होता है कि नहीं. तो उन्होंने इसको टोटल 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है डेल्टा की. तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वापस. तो दिस वैल्यू विल बी चेंज आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन. हेडिंग आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन ये वैल्यू आ जाएगी LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा, लेकिन माइनस में आई वैल्यू आफ्टर. तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट फ्रिंज का कितना हो जाएगा, डेल्टा एंड निकालना है. तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हमारा कितना था LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा, माइनस में से जो अब आया उसको आप डिडक्ट कर दीजिए LV स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा. तो वैल्यू आ जाएगी 2LV स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा, डेल्टा एन की वैल्यू ये आ गई. अब इन वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रख देंगे. दोनों के बीच का लेंथ कितना था, वेलोसिटी कितना लिया, लाइट की वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ कितना लिया. तो वैल्यू आएगी आपकी 0.4. सो ये 0 पॉइंट क्या है, एज पर द एजम्पशन ऑफ माइकलसन बोल रहे हैं कि ये जो फ्रिंज हमको जो बनी हुई थी, दोनों लाइट जब बैक एंड फोर्थ लाइट आपस में मिली, दो नंबर 1 रेज और नंबर 2 रेज आपस में रिकम्बाइंड किए तो फ्रिंज बनी थी. तो इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये फ्रिंज शिफ्ट होके यहाँ आ जानी चाहिए, हल्की हल्की शिफ्ट हो जानी चाहिए ऐसे. लेकिन जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ऐसी कोई शिफ्टिंग हमको नहीं दिखाएगी. देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. So this result is a useless. So after this whole experiment, it was found that this high ether is a hypothetical medium. There is no any type of method to detect the relative motion between earth and ether. So this is the negative interpretation हो गया. तो हम इसके negative interpretation को, result को हम discuss करेंगे हम अपने next part में. Okay, thank you so much. Michelson-Morley experiment, and also we'll discuss the interpretation of the results. Okay? चलिए शुरुआत में पहले समझ लेते हैं कि हमारे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है.
तो ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ईथर क्या है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ईथर एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट है। अर्थ में टोटली पूरी तरह से ईथर पाया जाता है, ईथर भरा हुआ है। ये एक हाइपोथेसिस थी जो कि एक ट्रांसपेरेंट और हाईली इलास्टिक मीडियम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने भी कहा कि ये एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट है। अगर ये एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट है तो इसके कंपैरिजन में हम स्पीड ऑफ लाइट को नाप सकते हैं। इसलिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव निकल के आया वो वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ईथर टू वेरीफाई द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, राइट। इस आर्टिकल को समझाने के लिए मैंने इंटरनेट से 2 लिंक ली हैं, 2 लिंक का मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहली लिंक का इस्तेमाल मैं आपको एनिमेशन के लिए यूज़ करूँगा। आप इस लिंक को खोल के भी एनिमेशन के बारे में और डिटेल पता कर सकते हैं, राइट। अब ये डिटेल देख लीजिए। इसमें सबसे पहले इसमें समझिए कि ये पूरा जो एरिया है ये ईथर से फील्ड है, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट है। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट को हमने एक पार्शियल स्प्लिट ग्लास प्लेट पे डाला और जब ये लाइट स्प्लिट अप हुई, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, लाइट के घूमने के स्प्लिट होने के बाद वापस इस इंटरफेरोमीटर पे आया। अगर दोनों डायरेक्शन में स्पीड सेम होती है, दोनों डायरेक्शन का डिस्टेंस सेम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय सेम होगा और एक ही समय पर दोनों फ्रिंजेस यहाँ लौट के, दोनों रेज लौट के आएंगी, कोई फ्रिंजेस नहीं बनेंगी। आप देखिए सेम यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर ईथर एब्सोल्यूट फ्रेम है तो, अगर ईथर एब्सोल्यूट फ्रेम है तो यहाँ पर कोई फ्रिंज विड्थ नहीं बनेगी, राइट। अब हमने क्या किया, ईथर अगर एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है, जो येलो लाइन जो आप देख रही है ईथर है, अगर ईथर ड्रैग कर गया तो देखिए कि इन दोनों में एक टाइम इंटरवल आएगा, जिस टाइम इंटरवल की वजह से आपको फ्रिंज विड्थ मिलेंगी, राइट। तो इसमें बात समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात, यहां मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया। मिरर M1 में यहाँ मान लेता हूँ, मिरर M2 में यहाँ मान लेता हूँ। दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस आपका डिस्टेंस L2, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। डिस्टेंस L1 इक्वल डिस्टेंस L2 इक्वल्स टू L विच वॉज एक्सपेक्टेड एज 11 मीटर। जब एक्सपेरिमेंट किया गया उसको 11 मीटर रखा गया। अगर यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आई, राइट, स्प्लिटर पे आने के बाद सोर्स ऑफ लाइट स्प्लिट हुई, एक आपके पैरेलल डायरेक्शन में गई, एक आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई। जब ये दोनों लाइट रेज, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय, की स्पीड भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय सेम होगा। जब वो लौट के आपके इस माइक्रोस्कोप पे आएंगी तो आपको यहाँ पर फ्रिंजेस नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ये जो मैंने अभी एनिमेशन दिखाया, अगर आपका ये जो ईथर जो इंडिकेटर है ये आपका ड्रैग कर गया, तो उस कंडीशन में दोनों लाइट रे डायरेक्शन में चलने वाले लाइट रेज में लगने वाला समय डिफरेंट होगा और आपको यहाँ फ्रिंजेस मिलेंगी, राइट। फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम, आप फिर से ध्यान से देखिए एनिमेशन को कि ये ड्रैग, ये डायरेक्शन ऑफ ईथर है। ये एक्सपेरिमेंट 2 भागों में किया गया था, एक था बिफोर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंड दूसरा था आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री रोटेशन बिफोर और ये आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन था। मैंने आपको दिखाया पहले 0 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, फिर 90 और फिर वापस 0 डिग्री पे, ईथर ड्रैग की कंडीशन में भी और विदाउट ईथर ड्रैग की कंडीशन में भी। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट दी गई, ये यहाँ से स्प्लिट आउट हुई, राइट। स्प्लिट आउट होने के बाद जब ये लौट के आई, अब देखिए दोनों में अब टाइम इंटरवल आ गया बिकॉज ऑफ ड्रैगिंग ऑफ ईथर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिए। जब डेरिवेशन हम करेंगे तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, राइट। Now come back to our derivation part. डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। अब जो पीछे मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाया था उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो ईथर है वो अर्थ में है और ईथर एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट है, इसलिए जो अर्थ का वेलोसिटी होगा वही ईथर की वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से अर्थ चल रही है, राइट। तो अर्थ की वेलोसिटी है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, राइट। ये जो स्प्लिटर से आपके पहले लेंस का डिस्टेंस था, मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका L1 डिस्टेंस है और ये मिरर आपका M1 है। क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमने इसको इस मूवमेंट भी कंसिडर किया है, इसलिए ये जो लाइट रे, आपका जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ लाइट रे है वो आपको कुछ इंक्लाइन दिखाई देगा। रीजन भी, जितने टाइम में, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c,
जितने समय में ये लाइट रे आपके इस पॉइंट से पॉइंट ए से चल के आपके पॉइंट बी तक पहुंच रहा होगा, उतने ही समय में आपका मिरर M1 डैश की लोकेशन को कवर करता होगा। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v है, दैट इज द वेलोसिटी बाय विच योर अर्थ इज मूविंग। ये डिस्टेंस आपका L1 है। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो यहां से यहां तक ए से बी का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। से लेट अस से टाइम t1 लगा, ये आपका डिस्टेंस है। ये आपका या मिरर M1 से मिरर M1 तक का M1 डैश तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा d इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। बाई सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इस टाइम के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से c स्क्वायर t1 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। दोनों टाइम सेम होंगे, दोनों टाइम हम T1 मान के चल रहे हैं। रीजन बीइंग, जितने समय में लाइट रेज यहां से यहां पहुंचेगी उतने ही समय में मिरर यहां से यहां पहुंचेगा, सो दैट इट कैन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक डायरेक्शन में, लाइक यहां से यहां तक से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में जाने वाला जो समय आपको दिखाई देगा वो होगा आपका लेट्स से टाइम t और t1। मैं करेक्शन कर दूं, मैं t मान लेता हूं कि टाइम दोनों सेम है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पुट कि वो टाइम t1 है कि टाइम t2 है, वो टाइम t है, राइट। टाइम t है। सो जो टाइम t आपको लग रहा है वो टाइम t हो जाएगा आपका L स्क्वायर या L1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, राइट। इसको मैं अगर इस तरह वर्कआउट करूं, सो दिस इज आल्सो t स्क्वायर एक्चुअली, दिस वैल्यू विल बी कम आउट लाइक सो t स्क्वायर इक्वल्स टू L1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, टेकन c स्क्वायर कॉमन 1v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। जब इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा t इक्वल्स टू L1 ओवर c into 1 over under root of 1 minus v square by c square. This is a time which has been taken by the light rays to travel from point A to point B. सेम फिनोमेना आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी में दिखाई देगा। मतलब पॉइंट बी से अब लाइट रेज को ट्रेवल करना है और पॉइंट सी, मतलब सिंपली ये एक तरह का वर्टिकल मोशन है, लेकिन क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव होता दिखाई दे रहा है इसलिए आपको ये मूवमेंट जो है ये इस तरह का दिखाई देगा। इसका मतलब जितना समय आपको इस डायरेक्शन में लगा उतना ही समय यहाँ लगेगा। तो ये जो टोटल टाइम है ये आप ध्यान रखिएगा, t परपेंडिकुलर, total time taken by light rays while moving at perpendicular direction, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 2 times of L over C into 1 over under root of 1 minus V square by C square। इसको for time being मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन 1 है, राइट। ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन डिस्कस किया, जैसे हमने आपके एनिमेशन में शो किया कि दो मिरर होंगे, एक मिरर M1 एक मिरर M2, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक परपेंडिकुलर होगा। ये हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया। नाउ कम टू दी हॉरिजॉन्टल पाथ, राइट। अगेन पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट्स से लेकर के आपका ये जो डिस्टेंस है ये L2 डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लिया, राइट। ये डिस्टेंस है। सोर्स ऑफ लाइट का जो वेलोसिटी है वो c है। इस ग्लास प्लेट्स के मूव करने की वेलोसिटी v होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज वी आर नाउ डिस्कसिंग द टोटल टाइम टेकन अलोंग पैरेलल डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन टू रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी ऐड होती है, राइट। मतलब टाइम टेकन अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन इज L2 डिस्टेंस, वेलोसिटी होगी c माइनस v, बिकॉज दोनों बोथ आर मूविंग सेम डायरेक्शन, प्लस लाइट को वापस लौट के भी आना है तो ये हो जाएगी c प्लस v, राइट। ये हमारा पैरेलल का टाइम पीरियड हुआ। और पैरेलल का जब ऐसे पूरा सॉल्व करोगे ये आपको वैल्यू मिलेगी 2LC डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। मैं c स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, 2LC, c स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ये हो गया 1 ओवर v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इस c से ये एक स्क्वायरिंग वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मिली मुझे 2L ओवर c
मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, राइट। ये मेरा टी पैरेलल में लगने वाला समय है। अब आप देखिए वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहाँ दिखाई देता है। अगर मैं ये मान लेता कि आपका जो ईथर है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जब मैं दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय निकाल रहा हूँ, फॉर योर रेफरेंस मैं फिर से यहाँ टाइम पीरियड लिख देता हूँ जो हमने पहले वाली स्लाइड में निकाली, टी परपेंडिकुलर टाइम, वो आपका था 2L1, this was 2L2, 2L1 by C, this is upon under root of 1 minus V square by C square. See the very interesting effect of time period taken by the light rays at two different directions. There is time period taken along the perpendicular direction and time taken for the पैरेलल डायरेक्शन। आप देखिए कि यहाँ जो टाइम है वो दोनों सेम नहीं है, ऑल्दो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि L1 डिस्टेंस L2 डिस्टेंस सेम है, वो भी 11 मीटर है, राइट। लेकिन बावजूद उसके अगर स्पीड ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन में सेम है या फिर ईथर आपका एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, तो इन दोनों पर टाइम पीरियड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। बट एज पर दी कैलकुलेशन पार्ट साफ दिखता है कि पैरेलल का टाइम परपेंडिकुलर टाइम के बराबर नहीं है। अगर दोनों का टाइम बराबर नहीं है, इसका मतलब आपको यहाँ पर फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए। तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस कितना होगा, आपका पाथ डिफरेंस होगा टी पैरेलल माइनस टी परपेंडिकुलर, हायर टाइम पीरियड माइनस शॉर्टर टाइम पीरियड। जब इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी एल बी स्क्वायर बाई सी क्यूब, ये आप कर लीजिएगा। ये मेरा पाथ डिफरेंस मिला मुझे, पाथ डिफरेंस इन द डिफरेंस इन टाइम एक्चुअली डेल्टा टी मुझे मिला। दोनों डायरेक्शन में लगने वाले समय में जो अंतर आया वो डेल्टा टी आया, राइट, डिफरेंस इन टाइम पीरियड। सो अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करता हूँ, राइट रेज दोनों डायरेक्शन में चल रही हैं, पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टी द इनटू सी ओवर लैम्डा। सो वैल्यू कम्स आउट डेल्टा इक्वल्स टू हो गया एल वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, राइट, ऑफ लैम्डा। दिस इज द 1/2 ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पाथ डिफरेंस साफ दिखता है, पाथ डिफरेंस साफ दिखता है। ये 1/2 ऑफ द एक्सपेरिमेंट है कि इसमें ये शो करता है कि दोनों डायरेक्शन में लगने वाले समय डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी डिफरेंस रही होंगी, जिसकी वजह से आपको पाथ डिफरेंस दिखेगा। इसीलिए क्योंकि इससे वो कन्विंस नहीं हो पाए कि ये कैसे हुआ और अचानक दोनों डायरेक्शन में आपका, अगर ईथर एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेस्ट था, स्पीड ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन में सेम होनी थी, तो दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय डिफरेंट कैसे हो गया। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर करने की ठानी और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्ट किया, री एक्सपेरिमेंट किया बाय रोटेटिंग द एंटायर एक्सपेरिमेंट सेटअप बाय 90 डिग्री। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री रोटेट किया, मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, तो जो लोकेशंस थी मिरर 1 और मिरर 2 की वो आपस में इंटरचेंज हुई। मतलब अब तक अगर मिरर M1 परपेंडिकुलर था और मिरर M2 पैरेलल था, तो अब मिरर M2 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और मिरर M1 पैरेलल हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में सेट कर लीजिए कि पैरेलल और परपेंडिकुलर की जो लोकेशंस हैं वो जो मिरर्स की वो चेंज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ रोटेशन बाय 90 डिग्री। अगर ऐसा हुआ 90 से आप रोटेट करेंगे तो जो वैल्यूज में डिफरेंस आएगा वो इस तरह से होगा, आपका टी ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू टी ऑफ पैरेलल की वैल्यू आपस में इंटरचेंज होगी। अभी आपको याद होगा टी ऑफ पैरेलल में रूट फैक्टर नहीं था, परपेंडिकुलर में रूट फैक्टर था, तो ये हो जाएगा 2f(L1c) अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में हो जाएगा 2L2/c 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। फिर फॉर कन्फर्मेंस देखिए, पैरेलल टाइम पीरियड रूट फैक्टर में आया आफ्टर रोटेशन बाय 90 डिग्री, आफ्टर रोटेशन बाय 90 डिग्री। जब आपने 90 डिग्री से एक्सपेरिमेंट सेटअप को रोटेट किया तो पैरेलल रूट फैक्टर में आया और परपेंडिकुलर विदाउट रूट फैक्टर में आया। आप देखिए इसमें आप देखेंगे पैरेलल विदाउट रूट फैक्टर था और परपेंडिकुलर रूट फैक्टर में था। अब परपेंडिकुलर विदाउट रूट फैक्टर है और पैरेलल आपके रूट फैक्टर, मतलब आप जो टाइम पीरियड है वो आपस में इंटरचेंज हो गया। सिंपल सी बात ये है, इसे समझ लीजिए।
और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पाथ रेफरेंस आएगा फाइनल डेल्टा डैश, ये आफ्टर रोटेशन है, ये होगा माइनस एल वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ योर पैरेलल परपेंडिकुलर इन प्रीवियस इक्वेशन। यहाँ फिर से देखिए, अगर इस इक्वेशन में पैरेलल और परपेंडिकुलर वैल्यू रूप में रखता हूँ तो ये माइनस हो जाऊँ कि ये वैल्यू अब छोटी है और ये वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन में ये वैल्यू मेरी बड़ी थी और ये वैल्यू छोटी थी, राइट। तो ये मेरा टाइम पीरियड आया और ये मेरा फेज डिफरेंस आया। सो जो रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ आनी चाहिए वो क्या होगी आपकी, फ्रिंज विड्थ की अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ की बात करूं तो बीटा कितना होगा, बीटा हो जाएगा मेरा डेल माइनस डेल डैश, दैट इज बिफोर रोटेशन माइनस आफ्टर रोटेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, अब देखिए एल बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा माइनस ऑफ माइनस एल बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑफ लैम्डा जब रखेंगे, ऑलरेडी आई हैव डिक्लेयर्ड यू दैट the value of L1 equals to L2 equals to L है, तो I substitute the values of L1 and L2 over here and this will be 2LB square C square of lambda. This is the value of fringe width. कितनी fringe width दिखनी चाहिए, let us have certain values over here. Velocity of earth is 3 into 10 to the power 4. Velocity of light is 3 into 10 to the power 8. Value of length between the split mirror and the reflecting mirror is 11 meter. से lambda जो हमने यूज किया वो 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग का वेवलेंथ में यूज किया। when you put all these values in this equation से इक्वेशन नंबर 5 आपको मिलेगा कि फ्रिंज विड्थ मिलनी चाहिए 0.4 फ्रिंजेस की, राइट। मतलब ये हुआ कि अगर आपका माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें क्लासिकल आइडियाज़ को आपने अप्लाई किया तो आपको उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फ्रिंज विड्थ मिलनी चाहिए थी वो 0.4 फ्रिंजेस की मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटली अगर आप बात करें, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक्सपेरिमेंटली आपको फ्रिंज विड्थ दिखी 0.01, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो एक्सपेरिमेंटली मिलती है 0.01, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ our all calculation part which is based entirely based on your classical ideas, वो दिखता है 0.4। तो प्रपोज था 0.4 फ्रिंजेस का, मिला 0 फ्रिंज का, तो ये हमारी एक कंट्रोवर्सी हुई जो कि नेगेटिव रिजल्ट के फॉर्म में निकल के आई। दे हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स, they repeated the experiment from 1881 to 1887 n number of times they repeated, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्हें इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि ऐसा क्यों हुआ। बाई वर्च्यू ऑफ मैथमेटिक्स a fringe shift must be of 0.4 fringes, but experimentally every time they find that there is no fringe shift, right? Now this is actually known as the negative results, because the result what they obtain is totally negative what they expect actually at the time of performing the experiment, right? अब ये देखिए कि इसमें ये जो नेगेटिव रिजल्ट आया, इस नेगेटिव रिजल्ट को आप समझाएंगे कैसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपका ईथर परफेक्ट रेस्ट पे होता तो आपको फ्रिंज विड्थ मिलती, राइट। अगर फ्रिंज विड्थ नहीं मिल रही है इसका मतलब ईथर ड्रैग कर गया, ईथर वहां पर रेस्ट पे रहा ही नहीं। ईथर अगर रेस्ट पे नहीं रहा, ईथर ड्रैग कर गया, तो ईथर की डेफिनेशन इसने वायोलेट करी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर गॉट फेल्ड एज पर द एक्सपेरिमेंटल आउटकम, द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर वाज फेल्ड। सिंपल सी बात है, फिर से समझ लीजिए। ईथर का एग्जिस्टेंस हम तब वेरीफाई करते हैं जब ईथर को हम परफेक्ट रेस्ट पे मानते हैं और उस मानने की वजह से हमें उस एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों डायरेक्शन से स्प्लिट होके आने वाली लाइट रेज के बीच में फ्रिंजेस दिखाई देती, जो कि एटलीस्ट 0.4 या 0.5 फ्रिंज की होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटली एवरी टाइम वी गॉट 0 फ्रिंजेस या नॉन मेजरेबल फ्रिंजेस। इसका मतलब ईथर एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्रैग कर गया, रेस्ट पे नहीं रुका, और जो कि अपनी खुद की डेफिनेशन को वायलेट करता है, इसलिए ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस हमारा फेल हो गया, ईथर का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। दूसरी बात थी कि अगर ऐसा था, ईथर ड्रैग करा या जो भी कंडीशन थी, ईथर का अगर इसमें फेल हो रहा है, तो क्यों ऐसा हमें दिखा कि दोनों डायरेक्शन में लगने वाला टाइम पीरियड अलग था।
टी पैरेलल का लगने वाला समय और टी परपेंडिकुलर में लगने वाला समय बराबर क्यों नहीं था? बिकॉज ये तो हम परफॉर्म कर चुके हैं। टी पैरेलल का समय मान लीजिए 2L/c 1/, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² है। सॉरी, ये पैरेलल का टाइम था आपका, और परपेंडिकुलर का टाइम था आपका 2L/c 1/, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। दोनों टाइम सेम नहीं दिखते। जब टाइम सेम नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट होनी चाहिए थी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो दोनों डायरेक्शंस में जो लाइट रे लौट रही थी उसमें कोई पाथ डिफरेंस होता। पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस होता, जो कि फ्रिंजेस दिखाती। फ्रिंजेस कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती थी एज पर दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम फॉलो करें तो फ्रिंज विड्थ जीरो नहीं हो सकती, राइट। ये कुछ ना कुछ वैल्यू होती, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती। इसको एक्सप्लेन किया हमने लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन द्वारा। कैसे, वो देख लीजिए। मान लीजिए मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपकी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, जो कि पैरेलल डायरेक्शन में। ऑलरेडी जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल ऑफ मोशन होता है, राइट। तो अब अगर मैं कहूं कि L इक्वल्स टू L0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c², में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला है और मैं यहां रखता हूं, तो फार्मूला हो जाएगा 2L0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c², एंटायर वैल्यू डिवाइडेड बाई द c 1 माइनस v²/c²। हम एक टर्म अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इक्वल्स टू a। मतलब इस फैक्टर को मैं रूट फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस 2L0 रूट ऑफ 1 माइनस v²/c² डिवाइडेड बाई c इंटू रूट ऑफ 1 माइनस v²/c² इंटू रूट ऑफ 1 माइनस v²/c², राइट। तो ये रूट फैक्टर से रूट फैक्टर खत्म हो गया। अब आपको क्या मिला, अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू मिली 2L/c। सो आंसर इज 2L/c एंड 1/रूट फैक्टर। 1/रूट फैक्टर में यहां फिर लिख देता हूं, जो टी पैरेलल का अब आपको टाइम मिला वो आया 2L/c डॉट 1/रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। L0 लिख रहा हूं, L0 का मतलब प्रॉपर टाइम, प्रॉपर लेंथ, और प्रॉपर लेंथ आपकी 11 मीटर है, हम ऑलरेडी जानते हैं। दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर टाइम विच वी हैव टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट। सो दोनों डायरेक्शन में लगने वाला समय आपको अब बिल्कुल सही दिखता है, सेम दिखता है। सो विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज Switzerland Lorentz contraction या length contraction, we will be able to explain how the time in both the directions are actually equal because of the concept of theory of relativity, not by virtue of classical theory of relativity. Is that clear? And the last is the consistency of speed of light, and which declares because of this time period, because of the time period which we have derived over here, because of this time period we can say the speed of light is same in all the directions. Okay, so ये हमारा जो नेगेटिव रिजल्ट है उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी किया, उसका हमने इंटरप्रिटेशन भी किया। क्लियर? So this is already well done. ये हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। Thank you friends. Now my upcoming video lecture is on relativistic addition of velocities. Thank you.